नमस्कार, मैं प्रदीप। आज आप लोगों की लाइनेक्स की क्लास है। पाइप बिटवीन प्रोसेस। पाइप्स बिटवीन प्रोसेस। एक्चुअली में ये होता क्या है, एक कमांड भी है इसकी PIPS करके, लेकिन पाइप्स बिटवीन प्रोसेस इसको समझना है। ए पाइप्स बिटवीन टू प्रोसेस इज ए पेयर ऑफ फाइल that is created in a present process that is create in a present process. The pipe command, the pipe concepts, the running resulting process when the present process talks. A pipe has been no existence in any file, in any file name, किसी भी फाइल नेम के लिए स्पेस, एनी फाइल नेम स्पेस, so that it is said to be anonymous. A pipe usually contains only two process algorithm. Any number of child processes can be connected to each other and their related parents by a single pipe. A pipe is created in the process that becomes the present by a call to pipe. The call returns to file descriptor in any array passed to it. After forking, both process read for P0 and write to P1. The process actually read from and write to a circular buffer that is managed by them. कि इसके लिए एक प्रोग्राम भी छोटा सा बनाया गया है, इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। द फॉलोइंग टेबल इज सोन एज इज पाइप राइटिंग टू द पाइप अंडर क्रिएटिंग कंडीशन। रेड, वाइट, रेड, इस तरह के अलग अलग डिफरेंट कंडीशन है। कंडीशन आपसे के पास क्या है? एम्प्टी पाइप राइटिंग अटैच, फुल पाइप रीडिंग अटैच, एम्प्टी पाइप नो राइटिंग अटैच, नो रीडर। यहाँ रिजल्ट इसका क्या आ रहा है? रीड ब्लॉक्ड, राइट ब्लॉक, EOF रिटर्न, एम्प्टी पाइप है, नो राइट रिटर्न, तो EFO और SIG पाइप इस तरह से दिया हुआ है। आउटपुट रीडायरेक्शन कमांड की क्या आउटपुट आ रही दोबारा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इनपुट रिडायरेक्शन, आउटपुट रिडायरेक्शन क्या होता है? द आउटपुट फ्रॉम ए कमांड नॉर्मली इंक्रीज्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट कैन बी इजिली ड्राइव टू ए फाइल इंस्टेंस। ओके, फाइल इंस्टेंस। उसके बाद क्या है? This capability is known as output redirection. If the notation file attempt to any command that normally write its output to the standard output, the output of the command will be written to file increase of your terminal. Whose command? Whose के बाद check the following whose command which redirect the complete output of the command in the user file. Whose command को हम इस तरह से प्रेस करेंगे, whose notice that no output appear at the terminal. This is because the output has been redirected from the default standard output device that terminal into the specified file. You can check the user file for complete contents. Cat user
ओके ओ, इस तरह से ये गेटी है हमारे पास, ये इतने बज के इस टाइम पे इस पे वर्क हुआ है, ठीक है। इफ ए कमांड इट output redirected to a file and the file already contains some data, that data will be lost. Consider the following example. Equalize one user, cat user, इस तरह से कमांड का यूज होगा। Output redirection, just as the output of command can be redirected to a file, so can input of a command directed from the file. As the greater character is used for output redirection, the less than character is used to redirect the output of a command. इस तरह से देखिए वर्ड काउंट के लिए ये होता है WC कमांड, कैरेक्टर को काउंट करेगा। In other words, in computer programming, especially in Unix operating system or Linux operating system, a pipe is a technique for passing. A pipe is a technique for passing information from one program process to another. For one program process to another. Unlike other forms, the inter-process communication (IPC), a pipe is a one-way communication only. पाइप क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है, केवल एक साइड से कम्युनिकेशन हो सकता है, वन वे कम्युनिकेशन ओनली. बेसिकली ए पाइप process is parameters such as the output of one process to another process which accept it as input. The system temporarily holds the piped information until it is ready by the receiving process. Using a Unix shell, the Unix interactive command interface, a pipe is specified in the command line as a simple vertical bar between command sequence. The output or result of the first command sequence used as the input to use second command sequence. The pipe system call is used in a similarly way within a program. The two-way communication between process, two pipe can be set up one for each direction. A limitation of pipes of inter-process communication is that the process using the pipe must have common parents process. तो पाइप कमांड का यूज हम उस समय करते हैं जब हमें पहले कमांड के आउटपुट को, पहले कमांड के, ध्यान से सुनिए, पहले कमांड के आउटपुट को दूसरे कमांड में ओपन करना होता है, दूसरे कमांड के इनपुट में ओपन करना होता है। पहले कमांड का आउटपुट जो है कि दूसरे कमांड के इनपुट में
नमस्कार। मैं प्रदीप। आज आप लोगों की लाइनेक्स की यूनिट 3 स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट पहला टॉपिक है हमारा, प्रोसेस मैनेजमेंट। आगे भी प्रोसेस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट पे डिस्कस, फिर अब इसको थोड़ा सा डीपली में पढ़ना है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है वही दिया हुआ है। In this chapter, we will discuss the details about process management in Linux. Process management Linux में क्या होता है? When you execute a program on your Unix system or Linux system, the system create a special environment for the program. This environment contains everything needed for the system to run the programs as if no other programs were running on the system. Whenever you issue a command in Linux or Unix, it create or start a new process. When you tried out the ls command to list the directory content, you started a process. A process is, in simple term, is an instance of a running program. The operating system tracks process through a 5-digit id number. Track process through a 5-digit id number known as the pad or the process id. Each process in the system has a unique PID. PID evenly repeat between all the possible number are used up and the next PID rules are started over. At any point of time, no two processes, number of two processes when the same PID exists in the system because it is the PID that Unix used to track use process. Starting a process, when you start a process, run a command. Process starting का मतलब run a command. There are two way you can run it. For foreground process and background process, two types of foreground process क्या होता है? By default, every process that you start run in the foreground. It get input that the keyboard and send its output to the screen. You can see this happens with the ls command. If you wish to list all the files in your current directory, you can use the following using command ls ch .doc ls करके ये फाइल का नाम है, ch कमांड है. This would display the file name of which start use ch and end with .doc. The process run the foreground. The output is directed to my screen, and if the ls command want to any input which is does not, it wait for it from the keyboard. While a program is running in the foreground and the time consuming, no other commands can be run start any other process because the prompt would not be available until the program finished processing and come out. Finished process. तो प्रोसेस मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का एक समूह, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक समूह, एक कलेक्शन है जो सिस्टम
जो सिस्टम रिसोर्स जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तथा फाइल सिस्टम को मैनेज करता है। मेमोरी, इनपुट आउटपुट सिस्टम, प्रोसेसर, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है। ये सिस्टम रिसोर्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे के सहयोग से कोऑपरेटिव ढंग से कार्य करने में सहायता करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, बहुत सारे कमांड्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट सब प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। प्रोसेस सिस्टम प्रत्येक रिसोर्स, एवरी रिसोर्स की स्थिति, उसकी स्टेटस की जानकारी रखता है और निश्चित पॉलिसी, सर्टेन पॉलिसी के आधार पर विभिन्न प्रोसेस के लिए रिसोर्स को बांटता है, उसको एलोकेट करता है। रिसोर्स को बांटा है, किसको कब क्या ज़रूरत पड़ेगी तुरंत उसको प्रोवाइड करेगा, यह निर्णय भी लेता है। यदि कोई प्रोसेस कितनी देर तक रिसोर्स का प्रयोग करेगा या कोई प्रोसेस कितनी देर तक रिसोर्स का प्रयोग करना, अंत में यह एलोकेट किए गए रिसोर्स को डी एलोकेट भी करता है। जहाँ तक प्रोसेस मैनेजमेंट का सवाल होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फिजिकल प्रोसेसेस सीपीयूज का प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट, अर्थात प्रोसेसेस या टेक्सेस या जॉब्स, प्रोसेस और टेक्स्ट और जॉब्स के लिए रिसोर्स प्रोसेस को एलोकेट करना ही प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। सारे सिस्टम को, सारे आर्किटेक्चर का मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट में ही आ जाएगा। कब कौन सी कमांड दी गई है, ये प्रोसेस हमारा कितना टाइम तक चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा जनरेट होना है, किसको उसके बाद काम पे जाना है, ये सारी चीज़ों का डिसीजन प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर होता है। अब प्रोग्राम्स में भी देखते हैं, प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूट कर रही है अथवा नहीं, उसकी अवस्था प्रोसेस कहलाती है। अर्थात कोई भी प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो वह एक प्रोसेस कहलाता है। जब कोई प्रोग्राम हमारा रनिंग प्रोसेस में होता है तो यह प्रोसेस कहलाता है। अर्थात कोई भी प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है, जो किसी खास कार्य को संपन्न करता है। उसके बाद जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, एक निर्णायक आउटपुट होता है। उसके बाद जो आउटपुट आता है उससे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि हाँ, इसका प्रोसेसिंग होने के बाद ये आउटपुट आया। उदाहरण के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल या कमांड इंटरप्रेटर भी एक प्रोसेस है जो यूजर द्वारा किए गए कमांड को एक्सेप्ट करती है, जो यूजर द्वारा किए गए कमांड को एक्सेप्ट करती है। जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसके विभिन्न सिस्टम, डिफरेंट रिसोर्स जैसे सीपीयू का समय, मेमोरी, रजिस्टर्स, फाइल इत्यादि की आवश्यकता होती है। जैसा कि टाइम शेयर्ड सिस्टम में एक साथ अनेक यूजर के प्रोग्राम मेमोरी में रहते हैं तथा प्रत्येक यूजर के प्रोग्राम के लिए सीपीयू के समय का एक भाग जो कुछ सेकेंड का होता है वो बटा हुआ होता है, एलोकेट होता है। जब सीपीयू किसी प्रोग्राम या कमांड को एग्जीक्यूट करता है तब एक प्रोसेस क्रिएट होती है। जब एक प्रोसेस अपने एलोकेटेड समय के पश्चात एग्जीक्यूट करना बंद कर दे तो दूसरी प्रोसेस चलना प्रारंभ हो जाती है। पहला प्रोसेस का एग्जीक्यूशन समाप्त होने के बाद दूसरा प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। जब कोई प्रोसेस कुछ समय के लिए टेम्परेरी सस्पेंड होती है तो उसके प्रोसेस के इंफॉर्मेशन को मेमोरी एलोकेशन में स्टोर हो जाती है। वो सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी एलोकेशन में स्टोर हो जाती है। इससे एग्जीक्यूट करना प्रारंभ हो जाता है। जहाँ से वह प्रोसेस सस्पेंड हुआ होता है, जहाँ से वो प्रोसेस रुका होता है, उसके बाद से